Hello, friends. Hope you all must be fine. It is always said that health is wealth, and a question arises in our mind: are you actually fit? And if we are professional, or we are business person, or we are not doing exercise regularly, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होती है हमारी लाइफ में. We think क्या एक्चुअल में हम फिट हैं. पीपल थिंक कि नहीं, हम काम तो कैसे भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. बट अगर आपको बोल दे 2 किलोमीटर चलना आपको, या आपको 5 फ्लोर की बिल्डिंग में आपको ऊपर चढ़ना है, इट विल बी रियली हैवॉक फॉर यू. बट वी हैव सुपर पर्सन्स विथ अस. एंड यस, नाम ही उनकी कंपनी का सुपर ह्यूमन है. एंड साथ में दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट पर्सनालिटी है, हु इज अल्ट्रा मैराथनिस्ट, जो सर चलते नहीं है, उड़ते हैं, वो भी 200 किलोमीटर ज्यादा चलते हैं, ऐसी बात है. सो आई वेलकम बोथ द पैनलिस्ट टू आवर चैनल फिनटेक्स चाणक्य, जेसल त्रिवेदी सर एंड लिहास त्रिवेदी सर. मोस्ट वेलकम सर. Thank you. Thank you so much. Hi, Sammir. Thanks a lot. Thanks for having us over here. Thank you very much. And sir, really thankful because we are in a channel of a fintech चाणक्य. जब फाइनेंस, टैक्सेशन, साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक स्टार्टअप की बात करते हैं, आज हेल्थ की बात की जाए. हमने कोविड में ऐसे बहुत सेशंस किए थे बिकॉज वी हैव एनजीओ हेल्थ फाउंडेशन विच वर्क्स फॉर अस. एंड बीइंग अ फाउंडर ट्रस्टी, मैंने सोचा कि आज लोगों को इसमें कुछ हेल्प मिलना चाहिए. सर, आई जस्ट वांट सिंपल थिंग. अगर एक से दो लोग की लाइफ चेंज हो गई आपसे बात करने के बाद में, इट इज इनफ फॉर अस. नाउ सर, टॉकिंग ऑन दैट पार्ट, फ्रेंड्स, let me introduce both the experts today with us. Talking on JESAL Trivedi sir, a person from banker to boxer, boxer to coach, coach to sports nutritionist. Means हमें कोई मूवी का ध्यान आ रहा है कि एक ही काम में नहीं करते हम. We are into multiple things. He was a banker before many years. I would say before a decade. Then he became a national level boxing player, a Gujarat state, even appeared in a Western Zone of State Championship in 2009, where he haven't won because of a shoulder dislocation, and then started with a dream of us making a people as a superhuman in the year 2015. Means I would say pursuing and helping to earn people their dream of becoming fit for more than a decade. Welcome, sir. Thank you, Sammir. Thanks a lot. Talking about LIHAS, sir. LIHAS, sir, is a race director and is an ultra marathoner and triathlete. He has a Guinness World Record to his name, as well as 2 Limca book record and even a national record for running ultra distances. He has run distance over 100 kilometers more than 15 times. Distance over 200 kilometers several times. As a race director, he is the man behind most of the marathons in Gujarat. And he has been directing races from 2010 and has done more than 126 races till date. So वो मूवी याद आती है, भाग मिल्खा भाग. लिहाज सर. Thank you. Thank you. तो सर, वहां पे कुछ आपने हेल्प की, ऐसा कुछ तो नहीं मूवी के लिए कुछ? नहीं. Now, sir, coming to our point, sir, our topic starting is health is wealth. Yes, sir, how will you define this? As it is rightly said, it's a very old proverb. Health is wealth, and most of the people like you who are associated as with people as chartered accountants and who look after the wealth of people. Health is something which is missed out. So basically, why this proverb has come up is health is wealth is that if you keep a good health, you are definitely going to enjoy your life much better than a normal person or than a person who is having some other kind of problem in life like diabetes, hypertension, XYZ. Nowadays, the life has become so fast and people are having so much of tensions in their and work pressures that they lose on health. So rightly said by somebody as a proverb that health is wealth is true in today's time. So you should have some time for yourself which helps you to gain your fitness and enjoy whatever wealth you are earning. Great, sir, great, rightly said. Coming to Jesus, sir, for the same thing, sir, as per your opinion, so what is this health is wealth? I would just put it this way. I see a lot of poor people around. All they've got is money.
All they got is money, not the health to spend that money. सबके पास मर्सिडीज होती है, BMW होती है, ये होता है, फार्म हाउस होते हैं, लग्जरीज होती है, बट दे कांट एक्चुअली enjoy their lives because they are either bedridden or they have high diabetes or blood pressure or knee issues or back issues or spinal issues, anything they are going through, right? पैसे बहुत है उनके पास, लेकिन हेल्थ नहीं है to make it big. So that's right. I see a lot of poor people, all they got is money, not health. परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। आपने बात की पुअर पीपल की। सर, इफ वी आर टचिंग अपॉन द सेम थिंग ऑन डिफरेंट वे, टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज इवन रिच, हु कैन अर्न देयर लिविंग, सो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? In view and perspective of, see, anybody and everybody who falls under this kind above the ground has to be fit, has to be functioning, has to be healthy. In any level of the society is living, he has to be fit, he has to be healthy. Right? Pandit to Pujari, I'm talking about a way, I'm giving you a vague example. Pandit और पुजारी को भी fit रहना पड़ेगा। वो पूजा करने के लिए, वो करने के लिए हाथ चलाने पड़ेंगे। If they'll just sit राम राम करेंगे तो फिर वो पहाड़ पे जाके बसेंगे। बिल्कुल Right? So in any profession you are, you have to be fit. परफेक्ट सर, परफेक्ट। कमिंग टू लिहाज सर, sir, can you please guide me about your journey, that what made you to choose long distance running? It was by chance that I took up long distance running because I met with an accident in my college days. I'm talking about 89, 88, 89. And I used to be a basketball player and a cricket player of my college. But because of the accident, and it was a knee injury. So once your knee is gone, you can't play either basketball or cricket or any sport. And once my surgery was done, doctors told me that you would not be able to play sports. So, sir, I would say it's luck by chance. Yeah, so and then what happened was that when doctor said that you cannot play sports, I said that I have to come back because I cannot leave sports. And that is how my journey of the long distance running started, by running around the city with a limp. कोई भी बंदा ऐसा आपको बताएगा कि यार आप लंगड़ाते लंगड़ाते क्यों दौड़ रहे हो, ऐसा मैं दौड़ने का शुरू किया था बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन मेरी नी में। और फिर भी मैं कोशिश करता रहा, और कहते हैं ना कि कोशिशें कामयाब होती है, तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही हुआ कि मैं कोशिश करता गया और कामयाबी मिलती गई। मैं थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगा, फिर लंबा दौड़ने लगा, और बाद में बहुत लंबा दौड़ने लगा। Great, sir, great. Coming back to Jaisal, sir. हाँ जी, बोलिए। Sir, please tell me about yourself as a fitness and nutrition coach. Well, I'll brief something about myself. बात ये थी कि in 2006-7 I was a banker with a bank which used to work from 8 a.m. to 8 p.m. I was a branch manager with the bank. So 8 a.m. 8 p.m. banking था, कैबिन में बैठना है, स्टाफ से काम कराना है, एंड लाइफस्टाइल हैजार्ड के हिसाब से आई पुट ऑन वेट। जब वेइंग स्केल पे एक दिन खड़ा हुआ तो 108 केजी वेट आया, एंड आई वाज 30 इयर्स ऑफ एज, 29 इयर्स ऑफ एज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 29 साल की उम्र में 108 किलो वजन। और फॉर्चुनेटली फॉर मी, नॉट अबाउट दैट गाय, दूसरे दिन लाइक जिस दिन वेट किया उसके दूसरे दिन आई हैड दिस न्यूज़पेपर इन माय हैंड, 28-year-old dies due to cardiac arrest. It was alarming. After exactly 3 days, 32-year-old dies due to cardiac arrest. So that was again a signal कि बॉस उठो, भागो, कुछ करो। You become sedent, you are putting on weight, तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी है, एक जगह बैठना है, and things are happening around you, people are passing away. So that was the signal when I said no, अब तो कुछ करना है. So I started focusing on my health first. I started running, I started lifting weights, I started doing cross country training and everything, and I managed to put down 30 kgs in a span of 4 months. 4 महीने में एक बार 30 किलो कम किया. I became fit, then continued my job. Then I thought, no, I'm meant for something bigger, a cause which is bigger than this, bigger than a branch manager or bigger than a regional manager. One fine day, after discussing it with my family, I just left my assignment and joined boxing.
I did some good work and I won a state level championship. I became Gujarat state heavyweight champion. Then I played for West Zone where there were 7 states. I became a champion over there. Then I represented Gujarat at nationals in Hyderabad in 2009. Unfortunately, while playing, I got my shoulder dislocated and I had to refrain from boxing. But those 2 years of boxing taught me a lot. Taught me a lot good things, the positivity about sports, how you feel, how you stand, how you walk, the spirit, your attitude towards life. That were all the positive takes from the sport. The negative take was being from Gujarat, being from Ahmedabad. There was a very poor scenario in sports at that point of time. So I thought if somebody like me cannot get proper coaching or proper nutrition or proper anything real pertaining to sports, how will other people get? Not all are all well settled. They could afford this, afford that, afford proper coaching, proper clothing, proper shoes, proper nutrition. There are a lot of people living under that line. So that I want to touch lives. So that is the point. I left my assignment and started looking for this. I did my American. Okay, so now from being a coach and leaving my boxing assignment, there was a gap of 3 years. Coming up from Gujarat, I always wanted to be a coach for boxing. Boxing is a very competitive sport, very furious sport. As per se perspective of people, it is a very furious sport, which actually is not. Which is actually is a very safe sport. But जो दिखता है कि नहीं ये तो मारा मारी का स्पोर्ट है इसमें लगती है ये वो तो people thought that. So in 3 years I never got more than 2 students. So I was not even meeting my ends at that point of time कि 3 साल के अंदर 2 student तो leaving my assignment as a regional manager and stepping down as a coach, teaching boxing to people and getting no clients in 3 years. 2 बंदों के साथ मैं बैठा था. That's it. Okay, fine. If there are no takers for boxing, at least I'll spread health, I'll spread fitness, I'll spread positive attitude. Right. That's where I did my American College of Sports Medicine, a trainer's course. And then, with the help of my elder brother, who happens to be an international runner, I formed a batch where I started strength and conditioning for general people. So I began my journey as a coach for strength and conditioning from 2016 till date. This is my 10th year. Great, sir. Great. So, sir, it's a journey again. Ki from banker to boxer, So boxer. coach, very different life, sir. So it's like this. You have to keep yourself updated. Upgradation is necessary because a lot of things are found over a period of 3 months, 6 months. A lot of technologies, a lot of new concepts, a lot of studies. So there are changes in old beliefs, old exercise ways. So we have to keep ourselves updated. So me being a coach for strength and conditioning, my clients going, no, sir, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये न्यूट्रिशनिस्ट वो बोल रहे, इसने ऐसा कहा है, पेपर में ऐसा पढ़ा है, यूट्यूब में ऐसा आता है, गूगल पे ऐसा है. So there are all myths, all myths. लोग YouTube में देख देख के आधे कोच बन जाते हैं. They become trainers themselves. YouTube देख देख कर, Instagram पे रील देख देख कर. So that's why I thought, no, let me study, let me be a स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट. मुझे किसी को पतला मोटा करने में शौक नहीं था कि आप ये खा के वजन उतारो. स्पोर्ट्स खेलोगे तो ऐसे ही आप फिट रहोगे. सो आई चोज द लाइन ऑफ बीइंग अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट. तब जाके मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया एंड आई बिकेम अ कंसल्टेंट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट. Because we have to keep ourselves updated to cater to people what is happening around. The more focus was not to let people deviate to Instagram and YouTube reels. कि इसने ये कहा है ये खाओ, किसी ने ये कहा है ये खाओ, किसी ने ये कहा है ये खाओ, बट उसने उसके लिए कहा है. It was not for you. That was per se a blanket statement which doesn't cover you. Great, sir. Great. Coming to LIHAS, sir. Sir, can you please share about your records with Limca book and Guinness book? Because बहुत कम लोग के पास पर्सनली कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं. तो सर, इफ यू कैन गाइड ऑन दैट पार्ट. तो मैं जेसल की बात को एक ऐड करना चाहूंगा कि हमारा फैमिली में कुछ ऐसा लग रहा है कि वी हैव चेंज द प्रोफेशंस. जेसल फ्रॉम बीइंग अ बैंकर टू बॉक्सर एंड देन टू अ कोच नाउ, सुपर कोच नाउ, राइट नाउ. वैसे ही मेरा जर्नी भी ऐसा ही था कि मैं फ्रॉम बीइंग अ फार्मा सेल्समैन टू बीइंग अ मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर एंड अ बिजनेसमैन फॉर मेडिकल प्रोडक्ट्स. एक बार मैन्युफैक्चरिंग भी हम कर रहे थे प्रोडक्ट्स का. But back of the mind, it was health always first.
कि ऐसा लग रहा था कि फिटनेस तो कभी भी जानी नहीं चाहिए। और उस वजह से जब मुझे मौका मिला पहली बार एक इंटरनेशनल रन करने का, मैं एथेंस जाके दौड़ा था फर्स्ट, मेरी बड़ी मैराथन। और तब जाके पता चला कि 50,000 लोग सिर्फ 42.2 किलोमीटर भाग रहे हैं। तो वहां से मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ चेंज हो गया कि लोग 42 किलोमीटर भागने वाले 50,000 लोग हैं और पूरी दुनिया से यहाँ पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और हम 5 किलोमीटर में थक जाते हैं। सो व्हाट हैपेंड वाज कि वी स्टार्टेड इन द जर्नी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। एक बार मैंने हाफ मैराथन, सॉरी फुल मैराथन कर लिया ऐसे इंटरनेशनली जाके, तो मुझे लगा कि अब इससे ज्यादा क्या करूं मैं, 42.2 तो भाग लिया। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्चिंग कि क्या कर सकता हूं। एंड वन फाइन डे अ फ्रेंड टोल्ड मी दैट देयर इज अ 100 किलोमीटर रेस इन सिंगापुर। So I said, let me register for that 100 kilometer race. I registered and ran that race. It was called Dawn to Dusk, Dusk to Dawn. So basically, it starts in the evening at around 7 p.m. And before 7 a.m. in the morning, you have to complete the race. So before the dawn happens or the sun comes up, you have to complete your race of 100 kilometers. And that is when I got the exposure to running 100 kilometer run. तो पहली बार मैंने 100 किलोमीटर का रन कर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, कि बंदा 100 किलोमीटर भी भाग सकता है। और अच्छी खासी स्पीड पे मैंने वो 100 किलोमीटर भागा था। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में एक और चैलेंज आ गया मेरे सामने। एक हेनरिक करके मेरा एक दोस्त था, कि जो स्वीडिश बंदा है, एंड ही वाज लिविंग इन अहमदाबाद। तो उसने बोला कि लिहाज देयर इज वन 24 आवर रेस इन गुड़गांव, अपने गुड़गांव में 24 घंटे की रेस हो रही है, लेट अस गो एंड पार्टिसिपेट। मैंने कहा 12 घंटे से ज्यादा तो मैंने कभी दौड़ा नहीं है, 24 कैसे दौड़ूंगा। सो 24 घंटे की रेस के लिए कुछ प्रिपरेशन ऐसी खास की नहीं थी, बट एक मन में ठान लिया था कि ये कुछ भी हो जाए करनी है। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट एन एक्सपोजर टू 24 आवर रनिंग। एंड व्हेन आई एंडेड माय रन ऑन दैट डे, आफ्टर 24 आवर्स, the race director of that run came and hugged me and said, you are the national champion. तो ये मेरा पहला रिकॉर्ड था कि मैं 24 घंटे में 183.5 किलोमीटर दौड़ गया। उसके बाद में द वेरी नेक्स्ट ईयर मेरे पास और एक चैलेंज आ गई कि लोग ट्रेडमिल पे भागते हैं। तो कितना भागते हैं जनरली, एक आप ट्रेडमिल में जाओगे तो 15 मिनट 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा भागोगे, बिकॉज जिम के अंदर इतना ही भागते हैं लोग। तो कहीं पे मैंने पढ़ा कि ट्रेडमिल पे भी 24 घंटे भागने की एक रिकॉर्ड है। मैंने कहा चलो हम ये भी अटेम्प्ट करके देखते हैं कि 24 घंटे कैसे भाग सकते हैं, और वो भी ट्रेडमिल पे, लेस देन 4 फीट ऑफ डिस्टेंस ऑन ऑफ बेल्ट ऑन विच यू हैव टू रन, राइट। सो आई टूक अप दैट चैलेंज इन द ईयर 2013 and ran for 25 hours continuously on a treadmill, making a Limca Book of Record of running 196 kilometers. So ऐसे ऐसे मतलब जर्नी मेरी आगे बढ़ती गई इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। दीज आर ऑल अल्ट्रा डिस्टेंसेस। फिर किसी ने बताया कि साउथ अफ्रीका में एक रेस होती है कॉमरेड्स, वो दुनिया की टफेस्ट रोड रेस मानी जाती है। मैंने कहा इतना भी क्या टफ होगा, लेट अस एक्सप्लोर, कि इतना टफ चीज है तो करके देखते हैं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेलियर होगा, हम वापस आ जाएंगे। तो वहां पे 90 किलोमीटर्स उनको करना होता है, एंड दैट इज टू बी डन इन अबाउट 11 hours, and there are 6 hills on the route. So when we started the journey of that Comrades Marathon, it was like, I was going on and on and on. एक के बाद दूसरा हिल आ रहा है, और हजारों के, आई थिंक उस टाइम पे 13 या 14 हजार लोग भाग रहे थे वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस। And I was one of the Indians, one of the very few Indians, I think 7 or 8 Indians were there in that race. And I completed those 90 kilometers in Durban in South Africa. और एक फीलिंग आया कि भाई हाँ, everything and anything is possible if you make up your mind and if you have a strong willpower. So ऐसे ऐसे ये सब जर्नी चलती रही। Few years back on my 50th birthday, I thought of celebrating it
इन अ डिफरेंट वे। मैंने सोचा कि भाई चलो कुछ और करते हैं, लोग सेलिब्रेट करेंगे, 50वीं बर्थडे है, फ्रेंड्स को बुलाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे, बहुत पैसा होगा तो क्रूज पे चले जाएंगे दोस्तों के साथ। और अगर हमारे जैसे रनर है तो कहेंगे कि चलो जितने साल हुए इतने किलोमीटर दौड़ लेते हैं। आई थॉट दैट लेट मी रन जितने साल हो रहे हैं उतने आवर्स। सो मैंने सोचा कि 50 साल में 50 घंटे दौड़ते हैं। तो सबने कहा कि बहुत पागलपन है, ऐसा मत करो, ये मुमकिन ही नहीं है और आप अपनी हेल्थ खराब कर लोगे। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तो मुझे ट्राई तो करने दो। 50 किलोमीटर तो लोग भागते हैं, 50 घंटे में भाग के देखता हूँ। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड रनिंग ऑन दैट डे, ऑन माई बर्थडे, फॉर 50 आवर्स। एंड आई मेड अनदर दिन का बुक रिकॉर्ड बाय रनिंग 280 किलोमीटर्स कंटिन्यूअसली। ग्रेट, सुपर। तो ऐसे ऐसे जर्नी आगे चलती गई। बट ये सब होता है ना कि मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। इफ यू आर स्ट्रांग मेंटली, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं हमेशा किसी को भी पूछते हैं सवाल, लोग पूछते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि आप 50 घंटे दौड़े। मैंने कहा कभी प्रैक्टिस तो आप 50 घंटे के लिए कर नहीं सकते। यू कैन रन 2 आवर्स, 5 आवर्स, एट मैक्स 6-7 आवर्स। लेकिन जब 50 घंटा दौड़ना है तब 50 घंटा एक ही बार दौड़ा जाता है, और वो मेंटल टफनेस की वजह से। एंड सिमिलरली 2 years बैक आई टुक अप अनदर चैलेंज अगेन फॉर अ ट्रेडमिल। किसी ने बताया रोज हाफ मैराथन किसी ने अमेरिका में किया है 52 डेज के लिए। मैंने कहा 52 दिन तक रोज हाफ मैराथन, और वो भी ट्रेडमिल पे, कितना बोरिंग बंदा होगा। मैंने कहा मैं और भी बोरिंग होके दिखाता हूँ। मैंने 55 डेज तक रोज हाफ मैराथन किया और रिकॉर्ड हासिल किया। तो आई थिंक ये सब चीजें एक बार मन में ठान लो और उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हो, यू डेफिनेटली हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहो वो कर ही पाओगे। यू डेफिनेटली हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, एंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो दैट इज हाउ आई मेड माई रिकॉर्ड्स, समीर। सुपर सर, सुपर। तो कुछ लोगों का सपना होगा जो आपने हकीकत बनाया है एक्चुअल में। कमिंग टू जेसल सर, sir, if you're talking about fitness, what is called core and how training core is important for a health of any person? Well, per se, your general general public understanding core is your core are your abs and your back, but scientifically, technically, anything below your neck and above your iliac bone, this is your iliac bone. ये कि जो आपकी हड्डी है वो iliac है. Anything and everything that is in between your neck and iliac is your core. Now, core plays a major role in any and every human being's body for his or her movements. Right? Imagine a puppet. I hope everybody has seen a puppet. एक puppet को आप पकड़ते हो, उसको आप हिलाते हो. Right? If the puppet itself, उसका जो core होता है वो रुई से या पानी से भरा है, तो that core itself stable नहीं है. तो if you want the movement ऐसे वैसे, तो movement ऐसे नहीं होगी. Why? क्योंकि वो core ही stable नहीं है. The moment you make the core of a stainless steel or maybe a hard plastic or wood or something, and then if you make movements, तो आपको जैसे हिलाना है वैसे movement होगी, right? Because the core is strong. So same applies with human body. When your core is connected, when your core is strong, the movement of your limbs, your arms becomes very perfect. The way you want to move it, the with the speed you want to move it, with right direction, right force. So मोटा मोटी आपका कोर अगर है तो आपकी मूवमेंट बहुत फ्री है, बहुत परफेक्ट है, बहुत फास्ट है. दैट इज हाउ कोर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर इट्स फंक्शनिंग एंड मूवमेंट्स. Great, sir. तो थोड़ा और समझते हैं आपसे, how gait and posture correction help us looking better and for any person. Very good question. I don't know the exact data, but if I believe I may not be wrong. 40 to 50% of people who are having lower back issues or knee issues or spinal issues are due to wrong posture. Not because they have played some sport and got themselves injured या कुछ करके या कुछ उठा के लोग ये मानते कुछ हुआ होगा या they come up with thoughts like this hereditary है. No, that's not hereditary. ये ऐसा हो गया, मैंने वो उठाया था कि मैं इतनी एक्सरसाइज करता. It is not because of that. Because they are not having proper posture, proper gait. Way to stand, everybody wants to move fast, move forward, but they don't want to stand properly. Their gait and their posture are completely entirely wrong.
हम सबने 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में स्केलेटल सिस्टम देखा है। आज अगर नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, 10th 11th 12th में हमने पढ़ा है, देखा है, सामने प्रैक्टिकली देखा है, राइट? सो डेट इज एग्जैक्टली हाउ अ ह्यूमन बीइंग शुड स्टैंड, बीइंग अ मेल फीमेल, बच्चा कोई भी है, बच्चा बूढ़ा कोई भी, उसे बिल्कुल वैसे ही खड़े रहना है। आई स्टिल शो यू हाउ इट इज। जो अपना रिब केज होता है उसको हम बोलते हैं थोरासिक, राइट? उसे ऊपर उठाना है, नॉट डेट यू टू एक्सपांड इट, उसको एक्सपांड नहीं करना है, जस्ट लिफ्ट इट अबव, राइट? लिफ्ट योर शोल्डर्स, ड्रॉप देम बैक, कीप इट लाइक दिस। आई ट्राई टू बी मोर विजिबल, like this. Keep your palms facing your thighs, right? Keep your knees soft. Soft मतलब हल्के से popped out. Lock knee करके नहीं खड़े रहना है, हल्का सा knee यूं pop out होना चाहिए. This is how a skeletal system is. This is how it has been manufactured or made. Right? भगवान ने अपने skeletal system को, now most of the people they have tendency to stand like this, droop shoulders. ये तो व्हाट इज हैपनिंग, मेरा स्केप्यूला खींच रहे, यहाँ का जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड होगा वो खींचता रहता है हमेशा। तो ओवर पीरियड ऑफ 2 और 3 डिकेड्स यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे डॉक्टर के अभी ये यहाँ पे सर्जरी करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को यूं खड़े रहने की आदत है, यूं इज लाइक यू नो टेकिंग द टमी आउट, और यूं वाई, तो यहाँ पे आपकी लोअर बैक पे जो भी L6 L7 आपका आ रहा है, वहां पे आप लोड दे रहे हो, यू आर नॉट स्टैंडिंग प्रॉपरली, दिस इज हाउ यूर डैमेजिंग योर सिस्टम। फिर आप बोलोगे मुझे लोअर बैक पेन हो गया, मुझे ग्लूट का पेन हो गया, मुझे नी का पेन हो गया, मुझे शोल्डर का पेन हो गया, मुझे ये पेन है, मुझे वो पेन है। सो मोर देन 40% of injuries or pains are due to wrong gait, wrong posture. So ये सबसे ये ऐसा है कि this is not something to be sold, this is something to be spreaded out. सिर्फ ठीक से खड़े रहना है आपको। आई एम श्योर एवरीबडी अपने जब जाएंगे, कभी कोई सोल्जर खड़ा है या कभी कोई एथलीट खड़ा है, तो इट बी स्टैंड अलोन इन अ क्राउड। व्हाई? बिकॉज उसका पोस्चर ही ऐसा है। सोल्जर्स आर मेड टू स्टैंड लाइक दैट, एथलीट आर मेड टू स्टैंड लाइक दैट। तो अपने को पता चल जाता है कोई ना कोई एथलीट है बंदा, या कोई आर्मी का होगा या नेवी का होगा या कोई एथलीट होगा या एयरफोर्स होगा। व्हाई? बिकॉज उनका पोस्चर सही होता है। Whereas नॉर्मल पीपल यूं शोल्डर नीचे यूं करके खड़े रहेंगे, गर्दन टेढ़ी होगी, यूं रखे होगे, यूं रखे होगी, पेट आगे होगा, तो दे आर यू आर प्लेइंग विथ योर स्केलेटल सिस्टम। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। आप सिर्फ सीधे खड़े रहोगे तो आई एम श्योर, आई कैन गारंटी यू, आप अपनी 40% इंजरीज को दूर रखोगे। आप एक्सरसाइज ना कर पाओ तो ना करो, लेकिन सिर्फ सीधे खड़े रहो, ढंग से खड़े रहो, तरीके से खड़े रहो, जैसे स्केलेटल सिस्टम होता है, जैसे अभी मैंने ब्रीफ में आपको समझाया। सिर्फ वैसे खड़े रहने से आप काफी सारी इंजरी से दूर रह सकते हो। Perfect, sir. Perfect. Very well explained with the practical approach. People will come to know new thing on this part, sir. Coming to लिहाज sir. सर आपने तो बहुत रनिंग कर ली, we all knows. And sir, it is said कि अगर if you want to run, आपको बहुत कम चीज चाहिए रनिंग के लिए। बोले सबसे वन ऑफ दी सस्ती चीज है रनिंग करना, ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं है। बेसिकली पेयर ऑफ गुड शूज, टी-शर्ट एंड शॉर्ट्स विल बी सफाइस फॉर दैट थिंग। सो व्हाट्स योर एडवाइस टू दोज who wish to consider running as a hobby or to form as an exercise? See, basically the humans are born to run. हम जैसे ही पैदा हुए हैं उसके बाद में जैसे ही खड़े होते हैं अपने पैरों पे, तो हम दौड़ने ही लगते हैं। एंड दैट इज हाउ द ह्यूमन बिहेव्स। तो इसके लिए हमें कोई मतलब थोड़ी बहुत with the time and with our age, we forget the actual gait and the stance, how you have to run. क्योंकि हम कंफर्ट में आ जाते हैं, ये शूज के कंफर्ट में, ऑफिस के कंफर्ट में, उसमें आने के बाद क्या हो जाता है कि हमारे पोस्चर चेंज होता है। एज राइटली जेसल सेड कि पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रनिंग में भी यही है कि भाई बेसिकली योर गेट एंड पोस्चर आर सो इम्पोर्टेंट थिंग्स कि एक बार आप एक छोटे बच्चे को दौड़ते हुए देखोगे ना, तो दैट इज द एक्चुअल वे ऑफ रनिंग, द एक्चुअल वे। आप एक केनियन और इथोपियन को देखोगे दौड़ते हुए, और एक छोटा बच्चा घर में जो दौड़ता है उसको देखोगे, तो दे एग्जैक्टली हैव द सेम मूवमेंट। वो अपने टोज या आगे वाले फ्रंट फुट से दौड़ते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली हाउ वी आर मेड टू रन। अच्छा, कमिंग टू द स्पोर्ट बीइंग अ वेरी इकोनॉमिकल स्पोर्ट, व्हाई? बिकॉज किसी भी और स्पोर्ट में बहुत सारी चीजें चाहिए। इसमें आप वन गुड पेयर ऑफ शूज,
गुड पेयर ऑफ शूज से मैं नाइकी या किसी बड़ी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ. वाई? बिकॉज एक कंफर्टेबल रनिंग शूज इज इनफ टू रन. और सबकी ख्वाहिशें ऐसी नहीं होती है कि भाई मुझे मैराथन जीतना है या लंबी दौड़ जीतनी है. उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दे वांट टू स्टार्ट फिटनेस. एंड फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फिटनेस इज दैट यू शुड बी एबल टू रन and do basic exercise. So joining a fitness momentum with a run is very easy. इसमें आप अगर वेट गेन कर चुके हो तो वेट लॉस इमीडिएट दिखता है रनिंग में कि you are say having a heavy body, but once you start running the weight loss happens very fast. The first few kilos are lost very fast because you are not into any kind of exercise. इसलिए मैं ये रेकमेंड करूंगा टू एवरीबडी दैट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्टार्ट रनिंग एंड स्टार्ट रनिंग वेरी फ्यू किलोमीटर्स. मतलब पहले ही दिन को मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर भाग लो, बट यू जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट स्टार्टेड, थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज करके 2-3 किलोमीटर आप भाग लो. और वो भी वॉक रन करो. आप वॉक करिए, उसके बाद में आपका बॉडी वार्म अप हो चुका है तो आप रन करिए थोड़ा बहुत, फिर वॉक करिए, फिर रन करिए. यू शुड हैव दैट हैबिट ऑफ 200 meters ऑफ वॉक, 600 meters ऑफ रन, अगेन 200 meters ऑफ वॉक. दिस इज द स्टार्टिंग. उसके बाद एक बार आप एक्स्टम्ड हो जाते हो तो उसके बाद में 200 meters वॉक्स एंड 800 meter रन. ऐसे आपका किलोमीटर खत्म करो और फिर वॉक को रिड्यूस करते जाओ. 100 meter वॉक एंड 900 meter रन, and then ultimately continuous running. So that is how you can start your journey into running. और running एक ऐसी चीज है जो full body को exercise देती है. There are only very few things which gives a full body exercise, and one of them is running and another is swimming, which requires the whole body to move. And that is the best thing one can start with. Great, sir. Great. Coming to JESAL, sir, for this thing. Sir, as per you, which is the most important workout type? Cardio, strength, or weights? नाउ आपने तो ये पूछ लिया, रोटी खाए, सब्जी खाए कि दाल खाए. Any Yes. workout you do is a good workout, but everything is interlinked, right? अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी जरूरी है, बिकॉज आप जब जहाँ तक 2-3-5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, यू डोंट नीड स्ट्रेंथ फॉर इट. वो आप ऐसे ही दौड़ लोगे. द मोमेंट यू वांट टू गो फास्टर एंड लॉन्गर, यू नीड टू गो फॉर स्ट्रेंथ. ठीक है. सो स्ट्रेंथ इज रिलेटेड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अगर आपको रनिंग भी नहीं करना है लाइफ में तो भी आपको स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, राइट? यू नीड स्ट्रेंथ. इवन इफ यू आर नॉट रनिंग, आप साइकिलिंग कर रहे हो तो भी, आप स्विमिंग कर रहे हो तो भी, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी स्ट्रेंथ की जरूरत है. सो रनिंग एंड स्ट्रेंथ गोज हैंड इन ग्लव. नाउ आपने बोल दिया वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू फॉर बिल्डिंग अप योर मस्कुलर स्ट्रेंथ. ठीक है. आपके मसल साइज बढ़ानी है, आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, यू वांट टू गेट फिटर. आपको अगर एस्थेटिक वैल्यू लाना है बॉडी में तो एस्थेटिक वैल्यू आपका वेट ट्रेनिंग से आएगा. सो हर एक चीज की अलग खूबी है. रनिंग की अलग खूबी है, वेट ट्रेनिंग की अलग खूबी है, स्ट्रेंथ की अलग खूबी है. लेकिन स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग. आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो स्ट्रेंथ के बगैर कैसे करोगे? आप स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो आप फास्ट कैसे भागोगे? आप इंजरीज होगी आपको दौड़ने में, आप लंबा नहीं भाग पाओगे, आप फास्ट नहीं भाग पाओगे, आप में स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप वजन नहीं उठा पाओगे, वजन नहीं उठा पाओगे उसमें आपको फ्रैक्चर हो जाएगा. सो तीन चीज को रिलेटेड है. You should have basic strength, you should do basic strength training, you should do weightlifting once or twice a week, and you should run twice or thrice a week. तीनों चीज आप करो, तीनों चीज का संगम करो, हैंड इन ग्लव है तीनों, एंड इट विल गिव यू वेरी मच पॉजिटिव रिजल्ट्स. आपने जो सोचा है उससे शायद 10% ज्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको, इफ यू मैनेज टू डू ऑल थ्री टुगेदर. ग्रेट सर, ग्रेट. मीन्स एक चीज नहीं करना है, सिर्फ रोटी नहीं खानी, सिर्फ सब्जी नहीं खानी, सिर्फ एक चीज ऐसा है, एक चीज आप रनिंग करोगे तो आप 5 किलोमीटर कर करके बोर हो जाओगे. इफ यू वांट गेट बेटर तो आपको स्ट्रेंथ करना ही है. बिल्कुल सही है सर. आप अगर वो वेट्स उठा कर रहे हो, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग टू जिम 100 किलो उठाते हैं, राइट? दे आर एबल टू लिफ्ट 100 kgs, बट व्हेन आस्क्ड टू रन 5 kg, वो हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं उनको. 100 किलो उठाने वाले को 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पाते. ठीक है. सो स्ट्रेंथ उनके पास वो कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट नहीं है, कार्डियोवास्कुलर वाले के पास वेट ट्रेनिंग नहीं है.
तो हर एक चीज कोरिलेटेड है, आपको 2-3 चीजें करनी ही करनी है। आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर करके या 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पाओगे। अब 100 किलोमीटर भाग लेते हो, अब 5 पुशअप नहीं कर पाओगे। तो हर एक चीज करना जरूरी है। Good, sir. Good. Leah, sir, coming back to you. So, what can needs to be taken by first-time runner or someone who has a medical conditions like diabetes or BP? कुछ मुश्किल हो उसको सर क्या ध्यान रखना है स्टार्टिंग में? Doctor has to, advise the person to whether he should start running or not, because जो उनका physician है, he is the right person to, advise the person whether he should start running or walking. तो डायबिटीज में आजकल जनरली देखा है कि दोज हु आर डायबिटिक्स, तो उनके डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई मेक रनिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। व्हाई? बिकॉज वो रनिंग से कैलोरीज बर्न होगी, आपका जो बेसिकली इंसुलिन लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो मेरे हिसाब से ब्लड प्रेशर डायबिटीज दोनों में रनिंग इज वेरी यूजफुल। एंड एज जेसल राइटली सेड दैट तीनों चीजों को करना चाहिए एक साथ, कि आप स्ट्रेंथ तो जरूरी है ही है। अगर आपका मसल मास मेंटेन रखना है और रनिंग भी अच्छा करना है, तो बोथ ऑफ देम हैज टू गो हैंड इन हैंड। तो वो इंटर रिलेटेड चीजें हैं दोनों। बट रनिंग ऐसी एक चीज है कि वो ये डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और अदर कंडीशंस में बहुत ही हेल्पफुल चीज है। इट कीप्स योर diabetes and blood pressure in control. So that is the one of the most advised exercise by a physician to their patients. And they should start very slow, as I say, कि ये कुछ किलोमीटर्स करें, उसके बाद उसको एडिशन करते जाए हर वीक में। एंड ऐसे ऐसे करके उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ाते जाए। एंड दैट इज हाउ दे विल बी एबल टू गेन लॉट ऑफ positive attitude towards life and fitness, and they will have the control of diabetes and blood pressure in the meantime. Great, sir. Great. Thank you, sir, for this. Coming to Jaisal, sir, again. Sir, as I know that you put a lot of importance for body balancing. So how does it actually work? मैंने अपने सबने सुना है, लेटर स्टेज इन लाइफ लाइक पीपल ग्रो ओल्ड, तो उनमें मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं होती, उनका बॉडी बैलेंस बिगड़ गया, तो बाथरूम में गए, पानी था, फिसल गए, हेमरेज हो गया। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट दे डू नॉट हैव स्ट्रेंथ, सेकंड उनका बॉडी बैलेंसिंग खराब होता है, राइट? अपने भी फंबल व्हेन रिस्पांस कुछ एकदम फास्ट हो जाता है तो वी टेंड टू फॉल, राइट? क्योंकि अपना बॉडी बैलेंस नहीं है प्रॉपर। So any activity, you have to be ready for any unfortunate mishaps, right? Unfortunate mishappenings, right? Happening around. तो उसमें बॉडी बैलेंसिंग ही एक चीज है। अपने स्ट्रेंथ चाहे जितनी भी हो, स्पीड चाहे जितनी भी हो, लेकिन अगर आपका बॉडी बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है तो you are tend to lose your balance and collapse, fall down, right? So बॉडी आपका पूरा कोर कनेक्ट करना है, आपको जो थ्री पॉइंट लैंडिंग है जिसपे आपको टोस को पूरा जमीन पे दबा के रखना है, तीनों पॉइंट उसके, आगे के 2 पॉइंट, पीछे का हिल है अपना, उसको दबा के रखना है। कनेक्ट योर कोर एंड कीप योर बॉडी बैलेंस। ये एक, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, यू हैव टू जस्ट इमेजिन आप खड़े हो, ठीक है, मैं आपके पास आया, मैंने आपको धक्का मार दिया, तो आप पीछे चले जाओगे। मैं बोल रहा हूँ समीर, आई एम गोइंग टू पुश यू नाउ, मैं वही समीर को वही पेस से धक्का लगाऊंगा तो समीर नहीं हिलेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज समीर हैज कनेक्टेड हिज कोर, उसकी फुट स्टेबिलिटी उसने बढ़ा दी सब कॉन्शियस माइंड से। उसको नहीं पता समीर को उसने क्या किया है, बट बिकॉज ही वॉज रेडी, ही कनेक्टेड हिज कोर, उसने फुट लैंडिंग प्रॉपर कर लिया है। सो दिस इज योर टू प्रैक्टिस डे इन डे आउट फॉर एनी मिस हैपनिंग्स अराउंड यू। और आपकी जहां पे आपका कोर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बैलेंसिंग ज्यादा होगा, आपका परफॉर्मेंस भी ऐसे बढ़ जाएगा। लाइक यूएस इन क्रिकेटर्स, एक जगह पर खड़े रह के शॉट मारना, दैट इज दैट बॉडी बैलेंसिंग। स्ट्रोक अच्छा खेला है वो ठीक है, लेकिन उनका बॉडी बैलेंस करके, अदरवाइज वो पैर पीछे लेके मिड फुट पे जाके बैक फुट पे जाके खेलेगा, उसका बैलेंसिंग नहीं है तो गिर जाएगा पीछे जाके। व्हाई? बिकॉज ही इज अनेबल टू बैलेंस हिज ओन मूवमेंट। So there you have to balance your movement in any sport. If you're a basketballer, if you're a footballer, if you're a cricketer, if you're a boxer, if you're a runner, if you're an any sort of athlete, you have to have your body balancing. Otherwise, you'll go with the momentum. You won't be able to control your pace, and then you'll have to fall or fumble. So their body balancing is very important. And as I said, कि जैसे बहुत सारे लोग अंधेरे में जैसे, right? Because we do not
have proper control on our feet, our mind, तो अंधेरा होता है तो we start shivering, अपने पैर थोड़े यूं यूं गिरने लगते, अपनी स्टेबिलिटी नहीं है, बॉडी बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है। वही अंधेरे में आपका बॉडी बैलेंसिंग प्रॉपर है तो आई बेट ऑन यू कि आई बेट ऑन एनीथिंग कि आप सीधा चल पाओगे, आप बिल्कुल सीधा चल पाओगे। व्हाई? बिकॉज योर बॉडी इज बैलेंस्ड, यू गॉट प्रॉपर स्ट्रेंथ टू कंट्रोल इट, so nothing is going to affect. There is where body balancing is very important. Great, sir. Great. People have not even thought so much thing कि body balancing कितना important हो सकता है. Now coming back to LIHAS, sir. Sir, one question is always arise. People are chain smoker, people are smoker. But a new concept is there in the market that now sitting is the new smoking. And being a professional, मैं अपनी लाइफ जानता हूँ, बहुत से फ्रेंड्स का जानता हूँ, बिकॉज सिर्फ इंडिया की बात करूँ, 14,000 चार्टेड अकाउंटेंट्स, 40,000 स्टूडेंट्स, एंड सीए इज नॉट द ओनली प्रोफेशन जहाँ पे बैठना होता है। आजकल के कॉर्पोरेट लाइफ में बैठने में ज़्यादा काम होता है। तो व्हाट्स योर एडवाइस टू देम, हाउ कैन दे स्टे एक्टिव एंड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ? सर सेम क्वेश्चन आई विल इवन कम टू जेसल अबाउट दिस थिंग्स। आप सर सोच रहे हैं कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आज के दिन में लोगों के लिए। कमिंग विद रिहास सर। Most, you are right about this question, that this is sitting is new smoking. I absolutely agree with you. Why? Because most of the jobs now have become comfortable for people to sit. They are considering it as comfortable, but actually it is not comfortable for the mind and body. Why? Because your posture is lost. When you sit at one place, you cannot maintain your posture because you don't have a strong core, as JESAL would say. So when you don't have a strong core, you will lose your posture in some time. Once you lose your posture, you will try to sit on a chair in different ways. थोड़े टेढ़े इधर उधर होके बैठने की कोशिश करेंगे. So that keeps on damaging your body. And most of the IT jobs, most of the CA jobs, most of the other jobs now, because of the kind of internet availability and the kind of apps which are available to us at a very easy disposal, we did not even think of going down and buying a thing. वो नीचे वाली चीज भी स्विगी वाला ही देके जाता है। तो अब क्या हो गया है कि ये पूरा हमारा जीवन शैली बदल गई है, and everybody is into their comfort zone. So to come out of this comfort zone and to do something, you need to exercise 1 hour every day. अगर आप 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप और भी डैमेज करोगे अपनी बॉडी को, और लाइफस्टाइल की वजह से ऑलरेडी डैमेज है आपकी बॉडी, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आप कैलोरीज ले रहे हो, आप काफी सारी कॉफीज और अनहेल्दी फूड खा रहे हो, बिकॉज आजकल की ऑफिस का स्टाइल ही ये है कि कॉफी ले आओ, पिज्जा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, कोला पीते हैं लोग, अननेसेसरीली एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं जस्ट टू स्टे अवेक. So these all things are, these all things are very unhealthy. तो ये सब चीजों को नेगेट करने के लिए you need to have some kind of exercise plan. And that is why these are very cautious things, very alarming things कि लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, and in 30-40 they deteriorate their health very much. इतनी ज्यादा डिटोरियोरेट हो जाती है कि उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और कभी कभार तो सुनते ही है हम केसेस कि इनको हार्ट अटैक आ गया, इनको ये हो गया, वो हो गया, एंड दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स ऑफ द वर्क कंडीशंस. True, sir. Yes, sir. Same question for you, sir. Okay, I'll take it like this. We sit and we eat. We sit and we drink. We sit and we have lunch. We sit and we have dinner. We sit and we have a breakfast. We sit and we gossip. We sit and we work. We sit and we drive. We sit and we watch television. We sit and we watch cinema. We sit and do probably everything. तो और बॉडी बिकम स्टेल. इतना सिंपल है, इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है. बस जो चीज करते बैठ के ही करते, बॉडी स्टेल हो जाता है, ब्लड की मूवमेंट भी कम हो जाती है, खाना हजम नहीं होता है. सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग. स्मोकिंग से ज्यादा सिटिंग मारता है लोगों को. दे डोंट इवन अंडरस्टैंड. ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है कुछ पार्ट में, खाना हजम नहीं होता है, फैट बनता है, एसिडिटीज इश्यूज होते हैं. देयर आर हेल लॉट ऑफ things attached to sitting. Hell lot of things attached to smoking se zyada there are minus points which are attached to sitting. So sitting is not even new smoking, worse than smoking.
लोग सब कुछ बैठ के ही करते हैं, राइट? Well, first thing we do is we get up and we sit on a bed. When we go to the washroom, we sit on the commode. We come out, we sit on the chair. We have some tea. We sit on the sofa. We wear our shoes. We sit on a car. We drive and go somewhere. वहाँ पे भी नाश्ता किया तो बैठ के किया. घर आके बैठ के जूते निकाले. Everything sitting, 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 sitting. 18 hours of a day we sit. गुड सर, बिल्कुल सही है सर. कमिंग टू लिहाज सर, टॉकिंग अबाउट मैराथन एंड रनिंग, चल अहमदाबाद या भाग अहमदाबाद means sir, you are Bhishma Pitama for marathon in Ahmedabad. We all know. Sir, can you please share the idea of founding Ahmedabad distance runner and bringing running events to Ahmedabad? देखो, कभी भी कोई भी चीज आप करो, say for example you have started your fitness journey, right? If you do not get an event where you can participate and show yourself, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि आपके डेस्क के पीछे बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारी वो पड़ी हुई है, योर परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट की प्लाक्स पड़ी हुई है, तो उसमें एक मेडल भी मुझे दिख रहा है अरविंद का. तो तो ये आपने सब बताया है, आप दोनों ने इतना मोटिवेट किया तो स्टार्ट किया मैंने जर्नी करना. हाँ, तो अगर अगर आपकी एक जर्नी शुरू हुई है फिटनेस की, तो इसको प्रूव कैसे करोगे? सो यू नीड एन इवेंट. व्हेन यू हैव एन इवेंट लाइक मैराथन, द मास पार्टिसिपेट्स. और मास पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि समीर भाग रहे हैं, जेसल भाग रहा है, XYZ भाग रहा है, तो एक एक माहौल बनता है कि वहां पे एवरीबडी लुक्स एट वन अनदर कि यस, वी आर ऑल इनटू फिटनेस एंड वी ऑल आर एंजॉयिंग व्हाट वी आर डूइंग. So events are very much necessity a part of the society. कि कोई भी बंदा है, अगर ऐसा इवेंट नहीं होगा तो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा. एंड अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ, यू फील कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे तो पता ही नहीं है. So events like marathon, events like running, cycling, swimming are important, and they should be there at every interval in a year. So हमारे लिए क्या है कि winter season is the only season where we can have such events. So we started these events in the year 2010, and since then we have been organizing events like marathon, cyclathon, duathlon, triathlon in the city of Ahmedabad as well as in Gujarat. And I feel very proud that my profession gives fitness to people. Yes, true. And that is the reason why I have made my profession, my passion as my profession. तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कभी भी कि मैं काम करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ. मैं दौड़ता हूँ और लोगों को दौड़ाता हूँ. What I give to people is something good. लोग कहते हैं कि ये खाना खाओ, इसमें इतनी ही कैलोरी है, इसमें ये नहीं डाला है, इट इज ग्लूटेन फ्री, दिस दैट, बट दे आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स. मैं कहता हूं कि आप दौड़ो और अपनी सेहत बनाओ, तो मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं. इससे ज्यादा सच वाला बिजनेस कोई नहीं हो सकता. आप देखोगे तो इससे ज्यादा सच वाला बिजनेस और इससे ज्यादा फुलफिलिंग बिजनेस कोई भी नहीं हो सकता कि आप किसी को हेल्थ इंपार्ट कर रहे हो. आप 10 लोगों को पूछिए कि ये प्रोफेशन है कि मैं सीए हूं, तो बोलेगा यार सीए कहीं ना कहीं है ना, वो किसी का टैक्स बचाता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है. डॉक्टर है तो डॉक्टर कभी गलत दवाइयां भी एडिशनल दे देता है, तेरे को ये भी जरूरत है, वो भी जरूरत है. मैं सिर्फ आपको जो एक करवाता हूँ वो एक फिटनेस का एंजॉयमेंट देता हूँ, एक फिटनेस की गाइडेंस देता हूँ और एक इवेंट देता हूँ और माहौल देता हूँ जहाँ पे आप आके एक फिटनेस का माहौल एंजॉय कर सकते हो. सो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड हैव इवेंट्स लाइक दिस, एंड इट इज नॉट ओनली मी, other people like me who are into this events of organizing running, cycling and swimming, कि जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखते हैं. आई थिंक इट इज अ वेरी गुड ग्रेट थिंग दे आर ऑल डूइंग. हम काफी सालों से ये कर रहे हैं. मेरी कंपनी का नाम है LS Sports, which organizes events in Gujarat, Rajasthan and many other parts of the India. We have lot of events coming up in this season also. So can you please tell me about that season, at least in Ahmedabad, Gujarat? So we organize events like marathon. अभी हमारा एक बी सफल मैराथन है जो January 12th को है, which is one of the longest running events of Gujarat and one of the most
कहते हैं ना कभी एथलीट फ्रेंडली इवेंट है. That is on 12th January. Registrations are open for that. There are 3 distances: 5 kilometer, 10 kilometer, and half marathon. That is 21.1 kilometer. अगर आप न्यू रनर है तो 5 किलोमीटर में आके माहौल को एंजॉय कीजिए. अगले साल आप सीरियस रनर बन जाओगे और 10 किलोमीटर अपने आप ही करोगे. हम ड्यूआथलॉन करके एक इवेंट करते हैं, विच इज अ साइकिलिंग एंड रनिंग बोथ टुगेदर, विच इज अ प्रीकर्सर टू अ ट्रायथलॉन इवेंट. मतलब अगर आप ट्रायथलीट बनना चाहते हो, विच है स्विमिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग ऑल 3 टुगेदर, तो पहले आप ड्यूआथलॉन करोगे कि जिसमें साइकिलिंग एंड रनिंग आर टुगेदर, एंड उसके बाद में फिर स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग करोगे. सो ड्यूआथलॉन इज एन इवेंट ऑन 22nd of December this year, which has 2 distances: Olympic distance and sprint distance. Registrations are open for both these events. We are also doing one event in very beautiful place called Balaram Palace near Palanpur, and this is a inaugural event of the new year on 5th January. तो आप ये तीनों इवेंट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कीजिए और आपकी फिटनेस जर्नी को शुरू कर दिए, क्योंकि एवरी ईयर 31 तारीख को लोग है ना फर्स्ट की राह देखते हैं कि भाई आज से हम एक नए साल का रिजोल्यूशन लेंगे कि फिटनेस रखनी है. तो आप रिजोल्यूशन लेके ही तुरंत आप शामिल हो जाइए हमारे इवेंट्स में, तो आपका रिजोल्यूशन कंटिन्यू होगा. सर आपने बिल्कुल सही कहा. 2 समय होते हैं जब जिम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं. एक कभी सलमान खान या जॉन अब्राहम की मूवी आती है, हाँ या न्यू ईयर आता है. हाँ एंड सबसे एक्सेप्शन उसका ही है कि 8% से लोग सस्टेन करते हैं, बाकी लोग आना बंद कर देते हैं. दैट्स व्हाई दे ऑलवेज कीप कि 1 महीने की फीस ज्यादा है, 1 साल की फीस कम है. इट इज ऑलवेज सेड दैट. यस, Being a business coach, we understand that much more better for that purpose. ट्रू. Coming to Jessal sir, coming to Jessal sir for this thing. Jessal sir, there are 2 sayings by doctor. First, an apple a day keeps the doctor away. Second, you have to walk for at least 45 minutes in a day for better health. Sir, can you please tell us more about correct way to walk, which can actually help to improve the health of a person? Well, I'll start with the first one. An apple a day keeps the doctor away. उसमें अंडरस्टूड ये था कि एप्पल खाने के बाद आदमी वर्कआउट तो करता ही है. एप्पल के जो गुण मिलते हैं, विटामिन सी, डी, जो भी है वगैरह, वो तो है, लेकिन उसके बाद वर्कआउट तो करते हैं. इट वाज अप्लाइड, इट वाज ऑलरेडी देयर, राइट. तो जो मैक्सिम में, जो प्रोवर्ब में इतना लंबा नहीं हो सकता कि यू आर वर्किंग एंड यू आर हैविंग एप्पल, तो इसको शॉर्ट में एब्रिविएट कर दिया. एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे. सो यू हैव टू वर्कआउट वन. Walking 45 minutes is one part. There are a lot of myths, lot of concepts. में 10,000 step, 10,000 step वाला चल रहा है. 10,000 step. You walk 10,000, nothing happens. You have to spread 10,000 every hour. आपने सुबह 10,000 दौड़ लिया, फिर बाकी का दिन आप आकर सो गए, तो it is not going to help you. So you have to be active every hour. I'll say, explain you all a very simple thing. I don't know who all are listening. क्या कर सकते हो आप? अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक माइंड अलार्म रखिए. एवरी 15 to 20 minutes ऑल यू हैव टू डू इज ब्रेक द साइकिल. आप अपनी चेयर पर से खड़े हो जाइए, लाइक आई जस्ट स्टूड अप. गो फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर योरसेल्फ. डू नॉट कॉल योर मेड, डू नॉट कॉल योर हेल्प. आपके प्यून को मत बुलाइए. जहाँ पे भी फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वहां जाइए, पानी का ग्लास उठाइए, आकर बैठकर पीकर बैठ जाइए. डू दिस एवरी 15 to 20 minutes. Spread your 10,000 steps का count over a period of 12 hours. अब 10,000 चल के 10 घंटे सो रहे हो, that is not going to help. So every hour you have to be active. Most of us क्या, आप खाना खाए, ऑफिस में बैठे 2-3 घंटे बैठे, कोई आया उसके साथ बैठे 2 घंटे आराम किया, या ये किया, कंप्यूटर पे काम किया, कुछ नहीं है तो नेटफ्लिक्स चला लिया. तो वी आर वेस्टिंग और वो कैलोरीज बनी नहीं हो रही है, right? So you utilize those 10 hours in a spread of 12 hours, 10,000 steps in a spread of 12 hours, not at a go. At a go कर रहे हो तो it is very good, but बाकी के 10 घंटे भी आपको चलना है. हर 15-20 मिनट पे you have to be active. You have to get up from your chair, move around, flex your muscles. नीचे बैठना है, झुकना है, तोड़ मरोड़ बॉडी का थोड़ा करना है, you ट्रांसवर्स प्लेन में घूमना है. You have to keep your body active. ब्लड फ्लो होना चाहिए पूरी बॉडी में. 10,000 चल के मेरा आज हो गया, मैं पतला हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता. 10,000 चलने के बाद भी आपको पूरे 10 घंटे 12 घंटे एक्टिव रहना ही है. और 10,000 नहीं चल रहे हो तो स्प्रेड डेट अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 12 hours. दैट्स इट.
Good, sir. Good. It's already 5:35. I will have a quick tip from both of you, an expert. Sir, quick tip from you with respect to person who is sitting long or either a woman or a kids. कुछ ऐसा वो करे दिन में, जैसे आपने से अच्छा भी आइडिया बताया 10,000 स्टेप्स का, कुछ ऐसी बातें कि उनको काम लगे. The first tip was breaking the cycle. This is the most important कि आप हर 20 मिनट पे मेंटल कुछ नहीं, आपके मेड को थोड़ा आराम दे दो, प्यून को थोड़ा आराम दे दो. आप पानी अपने आप से दूर रखिए. रीचेबल डिस्टेंस पे चीजें मत रखिए जो आपको अवर नवर, मतलब एवरी नाउ एंड देन यू नीड दोस थिंग्स. ऐसे अपने आप रीच में मत रखिए, हैंडी मत रखिए कि यहाँ पे जो चीज की आपको बहुत जरूरी है तो उसको थोड़ा दूर रखिए. तो एटलीस्ट यू गेट अप फ्रॉम योर चेयर, वॉक ओवर देयर, फेच दैट थिंग एंड कम बैक एंड सिट. तो विल ब्रेक दैट साइकिल. सो एवरी 15-20 मिनट जस्ट गेट अप, बी एक्टिव. और ऐसा नहीं सिर्फ चलना है, मैंने बोला देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज कि आपको झुकना है, आपको एक बार नीचे बैठना है एज इफ यू आर डूइंग अ सिटअप. ठीक है, कभी ट्रांसवर्स प्लेन में यूं घूमना है, कभी यूं घूमना है. तो आपके बॉडी स्ट्रेच रहेगी, मसल्स भी आपके स्ट्रेच रहेंगे, ब्लड फ्लो पूरे बॉडी में रहेगा. एंड यू विल बी मूविंग एवरी 15 to 20 minutes. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. नॉट कलेक्टिंग फैट, burning fat, keeping yourself healthy, keeping yourself flexible and active. ये सिर्फ एक चीज में अब बहुत फायदे हैं. वो फायदे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ फायदे ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, और कुछ फायदे ऐसे होते हैं जो नुकसान को रोकते हैं तो दिखते नहीं है. Right? So there are two type of things. One which comes up surfaces and people can visualize it. But there are certain things which doesn't surface, which is stopping something to surface, and that surface is evil. उसको दबा रहे हैं. Right? तो ये उसमें से है कि कुछ खराब नहीं होने देंगे. So always don't go जो लोगों को देख के बोले तारीफ करे, हाँ यार आप अच्छे दिख रहे हो, आप पतले दिख रहे हो, चौड़े दिख रहे हो. Don't go for it. जो ये है उसको दबाओ, evils जो उसको दबाओ. So these are those जो अपने खराब चीजों को दबाते हैं. Go for it first. फिर अच्छे दिखने की कोशिश करना. Done, sir. Done. Super. Sir, same question for you, Lihas, sir. So yeah, it is true that you have to be active all day. एक बार आपने दिन में कर लिया सुबह कि भाई चलो हम 1 घंटा तो वर्जिश करके आए हैं आज की, तो अब चलेगा पूरा दिन, कुछ भी करो, खा पी भी लो कुछ भी, वैसा नहीं होता है. एक्चुअली यू नीड टू बी वेरी एक्टिव. तो आजकल मैंने क्या शुरू किया है कि मेरी ऑफिस जाता हूँ तो एवरी 45 मिनट्स और मे बी 1 आवर आई जस्ट पुट एन अलार्म इन माई वॉच कि जैसे ही 1 आवर होता है ना, मैं 5 पुशअप कर लेता हूँ. तो उससे क्या होता है कि आपका पूरा बॉडी वर्कआउट हो जाता है, शोल्डर टू लेग्स टू एवरीथिंग इज वर्कड आउट. थोड़ी देर के बाद फिर वो लंजीज कर लेता हूँ, एक ही जगह स्टेडी होके दूसरे घंटे में कुछ 5-10 लंजीज कर लेता हूँ. तो उससे क्या होता है कि योर बॉडी फ्लो ऑफ द ब्लड इज कंटिन्यूअस इन द बॉडी एंड सम ऑफ द अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज हैपनिंग. सो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो ऑफिस के अंदर ऐसी चीजें कर लेते हैं, एंड दैट इज समथिंग विच एवरी पर्सन इन अ प्रोफेशन वेयर दे हैव टू सिट शुड डू इट. आप थोड़ी देर में पुशअप कर लो, आप थोड़ी देर में लंजिस कर लो, आप थोड़ी देर के बाद स्क्वाट्स कर लो. ये सब चीजें ऐसी हो कि कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी कपड़े में कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि भी आप एक ऑफिस के कपड़े में हो तो ये नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी इजी थिंग, और 5 पुशअप के लिए टाइम भी नहीं लगता है. इट हार्डली टेक्स 30 seconds फॉर यू टू डू 5 पुशअप्स. अगर ऐसा आप 8 घंटे करोगे तो आप सोचो 40 पुशअप करके आप घर जाओगे, विच इटसेल्फ इज अ बिग एक्सरसाइज. एंड यू नो आपका जो रिदम है वो ब्रेक हो जाएगा. जैसे जेसल ने बताया कि भाई रिदम हैज टू बी ब्रोकन, कि आप बैठे हो बैठे हो बैठे हो. मैं भी हमेशा ऐसा करता हूँ कि कुछ भी चीज मुझे जरूरत है तो मेरे प्यून को नहीं बोलता हूँ. आई ऑलवेज गो एंड पिक माई ओन थिंग्स. कभी कभी बोलते हैं कि सर आप क्यों खड़े होके आते हो. मैंने कहा मेरे को एक्सरसाइज करने की जरूरत है इसलिए मैं खड़ा हो रहा हूँ. मैं तेरे को बोल सकता हूँ. मैं आई स्टे ऑन द 9th floor ऑफ माई अपार्टमेंट, एंड ऑलवेज आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं जब ऑफिस जा रहा हूँ तब 9th floor डाउनस्टेयर्स उतर के ही जाता हूँ. सो दीज आर सिंपल थिंग्स इन लाइफ which helps you in gaining good fitness. और ये चीजें ऐसी है कि बिना बताए ही आपको हेल्प कर रही है, लेकिन ना वी डू नॉट मेक दैट एफर्ट. हम ऐसा सोचते हैं यार कौन 9 स्टेयरकेस उतरेगा. मैं चढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उतरने को बोल रहा हूँ. वो तो एक इजी काम है. आज सुबह ही एक अंकल ने बोला कि क्यों लिहाज भाई उतर के आ रहे हो आप.
मैंने कहा सर थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो उसको भी लगा यार कि यार ये सही कर रहा है बंदा। तो दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल एज वेल एज फिटनेस। बहुत सही सर, बहुत सही सर। नाउ एट द एंड वी डू क्वेश्चंस फ्रॉम द पब्लिक और द व्यूअर्स हु सेंड अस मेनी टाइम्स। तो सर आपको और 5 मिनट आप लोग का लूंगा मैं। सर वन क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ you as a fitness coach or an athlete you encounter from the people? बिगेस्ट मिथ कि इससे अच्छा होता है ऐसा कुछ जो नहीं करना चाहिए लोगों हाँ को। तो बोलो किसको, बोलो किसको, क्या रह जाए, पीपल सर क्लेम एक दो विद लॉट पॉइंट ऑफ, से। आई मीन सी दिस इज अ, क्या है कि वो सोशल मीडिया का जमाना है, पीपल विल कम विद लॉट ऑफ मिथ्स कि ये ऐसा, ये खाओ, ये मत खाओ, ये ऐसा होगा, ये इसके लिए है, वो उसके लिए, वो उसको सूट होता है, ये इसको सूट होता है, तो उसमें मैं क्यों करूं, जैसे बट द बेसिक क्वेश्चन आई कम अक्रॉस इज प्रोटीन। मिथ, प्रोटीन खाने से डॉक्टर ने मना किया है, प्रोटीन खाने से ऐसा होता है, द बिगेस्ट मिथ व्हिच आई एनकाउंटर एटलीस्ट वंस अ डे। वो सब पानी पूरी खा लेते हो, चना पूरी खा लेते हो, दही चटनी खा लेते हो, अब बन समोसा खा लेते हो, डबल चीज बस्ट पिज्जा खा लेते हो, अब रेकड़ी के ऊपर खड़ा रहकर वो पसीने वाला वो सब खा लेते हो, भजिया खा लेते हो, दाल वड़ा खा लेते हो, 2 पैक शराब पी लेते हो, पान मसाला खा लेते हो, सिगरेट पी लेते हो, अब प्रोटीन के लिए पूछ रहे हो? अब प्रोटीन के लिए पूछ रहे हो? एब्सोल्युटली। वेरी मच राइट सर। सर आस्किंग टू लिहाज सर द सेम क्वेश्चन सर अबाउट रनिंग के लिए अगर बात करें, व्हाट मिथ पीपल हैव? सबसे बड़ा क्या कहते हैं पता है? मेरे घुटने खराब हो जाएंगे। अरे भाई नहीं करोगे तो डेफिनेटली खराब होगा, और डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन, क्योंकि फिर तो पक्का खराब होने वाले हैं। मैं तो खराब घुटने के बाद दौड़ना शुरू किया है, मतलब मेरे से बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कोई कि एक्सीडेंट में घुटना टूटने के बाद मैंने इतने लंबे लंबे डिस्टेंस दौड़ा है। मेरा खुद का जो फ्रेंड है, ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। एक टाइम पे वो इतना मोटा हो गया था कि फिर भी बैठे बैठे मुझे, जब भी मैं उसके पास जाऊं, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है ना, इंजरीज, तो जाऊंगा तो बोले लिहाज यार ये इतना ज्यादा लंबा दौड़ना छोड़ दे तू। मैंने कहा डॉक्टर तू शुरू कर दे। तो मतलब हम उम्र है तो हम दोस्त हैं तो ऐसा बोल सकते हैं। बोले नहीं नहीं यार ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। यू विल नॉट बिलीव, टुडे ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रनर्स। He is ग्रेट। one of the finest runners. That orthopedic surgeon is one of the finest runner in our city. उसका लड़का सिर्फ 20 साल का है, उसने हाफ आयरन मैन किया अभी। सो जस्ट सी हाउ द इंस्पिरेशन स्प्रेड्स। जो खुद बोल रहा था कि तू दौड़ना बंद कर, वो खुद एक अच्छा रनर है, उसका बेटा हाफ आयरन मैन करके आया है। एंड नाउ एनी रनर हु हैज ए इंजरी गोज टू हिम ओनली। तो इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि दौड़ने से घुटने खराब होते हैं। आप मेरे को आपकी फैमिली के 2 एग्जाम्पल बता दो कि जो दौड़ रहे थे और उसकी वजह से उसके नी रिप्लेसमेंट। यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल बहुत होंगे कि जो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे रहे, मोटे हो गए, उसके नी रिप्लेसमेंट हुए। देर इज नेवर एन एग्जाम्पल अनलेस यू आर ए जैसे टेनिस प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर होते हैं, उनके घुटने खराब होने का कारण अलग चीज है कि वो बहुत ज्यादा उसको यूज करते हैं। बट अदरवाइज अ नॉर्मल पर्सन हु रन्स 30 to 40 kilometers अ वीक, उसके घुटने कभी भी खराब नहीं होंगे। इनफैक्ट at the age of 80-85 also he will be able to walk without support of anybody. That is my promise to everybody. ग्रेट मतलब सर। इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने घुटने को कंटिन्यूअस मोमेंट में रखते हो। सर वी गॉट इन टोटल 10 to 15 क्वेश्चंस, मोस्टली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। बस लास्ट एक एक से आपसे पूछूंगा सम अप से पहले। सर हाउ इम्पोर्टेंट इज कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी इन वर्कआउट? कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको अगर पता हो तो मैं अभी कुछ रनर्स को एडवाइस दे रहा हूं कुछ दिनों से कि आपको अगर अच्छा दौड़ना है तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्पीड, बिकम कंसिस्टेंट, बिकॉज वी आर एट एन एज वेयर वी डू नॉट रिक्वायर स्पीड। व्हाट वी रिक्वायर इज अ कंसिस्टेंसी। आपको मेंटेन करना है एक रिदम। तो अगर आप वीक में 2 बार दौड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ 4 बार दौड़िए। क्यों? क्योंकि इट हैज टू बी ए कंसिस्टेंट एफर्ट। If you do that consistent effort,
your actual target will become very easy. अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं रखोगे और प्रेशर में आके एक दिन जाके बोले यार मेरे 10 कलीग दौड़ रहे हैं, मेरे को भी दौड़ना ही पड़ेगा, तो उस दिन आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। और उस दिन कुछ भी करके आप दौड़ तो लोगे, लेकिन फिर उसके बाद 4 दिन तक आप खाली कोसोगे अपने आप को, यार ये तो मेरा पैर दुख रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरा बॉडी एक है, जाता नहीं है। सो कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग विच शुड बी परमानेंट। Great, sir. Great. Last question for JESAL, sir. So, what role does mental health play in physical fitness? Optimism, physical fitness will give you very much a positive attitude towards life. You'll start believing in yourself. जो आपके endorphins release होते हैं, काफी सारे hormones release होते हैं, which gives you positive feeling that life is good. जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो पेनफुल होता है, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने क्या बुरा किया है किसी का, मुझे क्यों दौड़ना है, मुझे क्यों पुशअप करने हैं, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है. द मोमेंट यू एंड इट, endorphins release होंगे, you feel good about everything. बॉस आज तो boy, it's a very good day, it's a very good day today, it's sunny day, अब तो मैं कुछ भी कर लूंगा. एंड ट्रस्ट मी, आप रात के 12 बजे काम करोगे तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे यार ये गुस्सा नहीं आएगा आपको, आपका वो गुस्सा कंट्रोल में रहेगा. यू विल बी स्वीट टू एवरीबॉडी, यू विल बी स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड कि और कुछ काम हो तो मैं खत्म कर पाऊं. एंड द वे यू टॉक टू पीपल, ये आपका गेट, आपका पोस्चर, आपकी बिलीफ, सब कुछ पॉजिटिव रहता है, राइट? बिकॉज यू ऑलरेडी, आपको जो स्ट्रगल करना था सुबह आप कर चुके हो. डेट हैज टॉट यू लॉट कि भी आप ओवरकम कर सकते हो. 20 पुशअप के बाद जब पेन करता है तो आपका हाथ नहीं टूटा है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप सोच रहे थे मैं मर जाऊंगा, ये कंधा टूट जाएगा, मैं और दौड़ूंगा तो मेरा हार्ट मुंह से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. यू सर्वाइव्ड दैट. अगर आपने वो सर्वाइव कर लिया तो यू कैन सर्वाइव एनीथिंग इन लाइफ. That turns into your mentality and you become positive towards life. Great, sir. Great. The Meet Vakil, we all knows him. One of our expert person. He asked a question to JESAL, sir. Many people keep saying that such heavy workout is not needed. So, what is your say on that? And what is heavy actually? Sir, what is such heavy has to be described. What is such heavy? Like such heavy, it's from person to person. I lift 100 kgs, it is not heavy for me. Somebody lifting 20 kgs is heavy for somebody. Somebody lifting 200 kgs is not heavy for him or her. राइट? सो हैवी एज अ डेफिनेशन, एक दिन में हैवी नहीं कर सकते, आपको उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है. अगर वेट है तो वेट, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, स्पीड है तो स्पीड, एनीथिंग यू काउंटर इट डे बाय डे, इंकलकेट करो डे बाय डे. एक साथ में आप खाना भी 2 किलो खाओगे तो आपका बॉडी हजम नहीं करने पर, आप 200 ग्राम 10 बार में खाओ, राइट? मैं आपको 100 पुशअप और 100 स्क्वाट कराऊंगा तो आप दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज हो जाओगे. उससे अच्छा मैं 10 आपको 10 दिन तक करा रहा हूँ. योर बॉडी विल कैच अप, विल गेट देयर ऑन 11th डे. You will feel fitter, you will feel flexible, you will feel stronger on the 11th day. पहले दिन में आप कर तो लोगे लेकिन दूसरे दिन बीमार हो जाओगे. So heavy as a definition. So you can go heavy day by day gradually. Great, sir. Great. Sir, talking about me, अगर किसी इंसान को डायबिटीज हो, या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, मैं अपनी बात ना कर रही हूँ, डायबिटीज बॉर्डर पे हो, किसी को बीपी बॉर्डर पे हो, थोड़ा हार्ट में इश्यू हो, तो क्या सर ये सब एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए उन लोगों को? मेरे साथ जुड़ जाओ, सुपर ह्यूमन के साथ जुड़ जाओ, सब रिवर्स हो जाएगा. Yeah, I am one of the best example for that. I would I got a lot of my students were having these issues, were not are. yeah. 2-3 महीने में, 4 महीने में निकल जाते हैं सब issues. Everything on borderline goes back. Great, sir. Great for that thing. Sir, क्या हम भी लालची इंसान? Sir, last thing I will ask you about Fintax Chanakya. So, any 2 words from your side? JESAL, sir. It is first of all, thanks to you that you've given us a platform to permeate to general public. Right? There is a lot of things I would like to educate people. मैंने बोला मैं, because this was my passion, I wanted to give it to the society. जो मुझे नहीं मिला था being a boxer, जो ज्ञान, जो knowledge, जो handholding मुझे नहीं मिला था, वो मुझे देना है लोगों को. तो you helped us. Fintax Chanakya has helped me a lot permeating through the crowd. Right, so I'll keep looking forward to connect with you again and have another session with you, maybe in more details. Great, sir. LIHAS, sir, please. So it was a great opportunity through Fintech Chanakya that we could speak to so many people who are, a part of your channel and who interestingly wait for such programs. I think this is one of the programs where we are trying to spread fitness. And जो आपका एप्ट टाइटल है हेल्थ इज वेल्थ, उसको सूट करता है, बिकॉज यू पीपल
being into fintech, आप सबका वेल्थ क्रिएशन तो करवा देते हो, लेकिन मौका आज मिला है कि हेल्थ क्रिएशन भी कर दे. So Yes. let us create a good health of the entire society, because our Prime Minister also is working towards the same lines, fit India and fit nation. I think we get in a lifetime, you get very few people who, look at the society as a whole. And I would say Prime Minister Narendra Modi is one such person whom I have personally been in touch with, because I have organized the event of Sabarmati Marathon in Ahmedabad. That he had a vision. The day I met him, he said, ki if the city doesn't have a marathon, the city is the whole world is going to look at that city. तो ये फिटनेस का जो फंडा है has to spread very fast. We are expecting Olympics to be held in our own city of Ahmedabad in the year 2036. Why not to have champions out of our own community? Let us spread the fitness through your channel, and thank you for providing us the opportunity to talk to so many people and just give a little thought, a food for thought, and get started in this new year, in the coming year. Thank you, sir. Thank you. So first of all, I always used to say, we're chartered accountant. We're conscious about figures, but not our own figures. And that's a fact thing. And I sincerely thanks both the panelists, both the experts in fitness, nutritionists, and even a marathon, LIHAS sir and JESAL sir, for coming in the channel and spreading the things. Sir, बहुत से लोग लाइव में नहीं देख पाते हैं. If even I will going to share with many people, सर किसी भी अगर लाइफ अच्छी हो तो सर it will be really beneficial for them. And Yes, that's what we are looking for. Yeah, that's the thing. I thanks Health Foundation being the founder, trustee of that NGO जो हमेशा हेल्थ पे फोकस करता है, UCI pillar and yes Fintax Chanakya. Thank you both of you for supporting this event. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sammir. Yep. Thank you.